Hello friends, welcoming you all with the chapter triangles, and it is very important for class 9th student. Now we are going to read some more theorems related to congruency. So these theorem will help in solving congruency question more easier. Okay. Hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button. Now see, first theorem is side congruence rule. इसमें क्या है, अगर कोई दो ट्रायंगल गिवन है और उनमें तीनों साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं, दैट मीन्स ए बी डी ई के इक्वल हो जाए, बी सी विल बी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, देन वी कैन ऑल्सो से दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ. पिछले पार्ट्स में हमने साइड एंगल साइड रूल पढ़ा था, एंगल एंगल साइड पढ़ा था, एंड एंगल साइड एंगल. 3 rules we had read in earlier part. Now we had seen one more condition which give you congruency between two triangle, that is side rule. इसमें आप समझ गए ना, इसमें क्या है, अगर 3 corresponding sides given है वो correspondingly दूसरे triangle के साइड्स के बराबर हो जाए तो हम उन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं. सिमिलरली वन मोर थ्योरम, देन वी आर डन विद ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस रूल. RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है, एक एंगल आपका 90 डिग्री है दो ट्राइंगल में. ओके, सपोज दिस इज ट्राइंगल ABC एंड दिस इज ट्राइंगल DEF. मीन्स एंगल B and angle E is 90 degree. Hypotenuse of both the triangles are equal, then taking any one side of the triangle means अगर आपने BC को EF के इक्वल दिया हुआ है तो भी आप कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. और 90 डिग्री एंगल गिवन है B. ओके, यहाँ पे DEF में E वॉज 90 डिग्री एंगल. AC, hypotenuse of triangle ABC is equal to hypotenuse of triangle DEF, which is DF. Taking side AB is equals to D, then also we can say that ABC is congruent to DEF. Means any one side of a right angle triangle with hypotenuse is given equal to corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent. Okay, so using these two theorems we will do some more questions given in your NCERT. See, one question is triangle ABC and triangle DBC आपको isosceles triangle given है, that means AB is equals to AC and DBC is also an isosceles triangle, that's why and DB is equal to DC. Okay, सो हमें शो करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के. सो वी विल टेक ट्राइंगल ABD जिसके बीच में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी होगी. उन ट्राइंगल को हम पहले कंसिडर करेंगे, देन द व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन वी विल नोट इट डाउन. अकॉर्डिंगली वी विल अप्लाई द कंडीशंस विच विल बी सूटेबल टू प्रूफ एनी टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. ओके, सो यहाँ पे क्या है, AB इज इक्वल्स टू AC बिकॉज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. सिंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, DB DC के इक्वल है बिकॉज DBC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. Isosceles triangle, we will mention the reason for as we write any condition. Okay, now AD is common in both the triangle, so length is same for both the triangle. Therefore by side rule triangle ABD is congruent to triangle ACD. Okay, so first part is proved. Now अगर ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट है तो हम CPCT रूल से और क्या लिख सकते हैं, एंगल
BAD will be equal to angle CAD, okay, और angle ABD will be equal to angle ACD. Also angle ADB will be equal to angle ADC. So all corresponding angles will also be equal. So this angle is equal, this angle is equal, and this we had denoted, okay. अब हमें शो करना है ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP. मैं फिर से एक बार डायग्राम यहाँ पे बना देती हूँ जिससे बार बार मुझे उसी स्लाइड पे ना जाना पड़े. ABC, यहाँ पे D था, इधर वी हैड मार्क्ड P. सो हमें शो करना है, टू शो, जो हमें शो करना है वो हम नोट डाउन करेंगे. पहले ट्राइंगल ABP को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है ट्राइंगल ACP के. सो बाय फर्स्ट पार्ट वी हैड एंगल BAP और D, वॉट एवर यू वॉन्ट से. एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP and AB will be equal to AC, ठीक है. AP is common in triangle. जिसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है उसी ट्राइंगल को हम लेके चले, ABP को और ACP को. इसमें AP कॉमन हो गया, AB इक्वल टू AC सिंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो हमने जो प्रीवियस कंडीशंस पढ़ी थी साइड एंगल साइड रूल से, वी कैन से दैट ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, ओके. सो बाय CPCT से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एज वेल एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे. मीन्स BP विल बी इक्वल टू PC, ओके. BP PC के इक्वल हो गया. एंगल B एंगल C के इक्वल है, बट ऑब्वियस है. एंगल APB विल बी इक्वल टू एंगल APC. नाउ CPCT रूल से हमने ये जो जो हो सकता था पॉसिबल वो सब मैंने नोट किया. नाउ AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एज वेल एज एंगल D को. सिंस बाय फर्स्ट वी हैड सीन कि BAP एंगल इक्वल है CAP के. दैट मीन्स सिंस एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, सो AP बाइसेक्ट्स एंगल A. इससे हम ये कह सकते हैं. नाउ अगर हमें शो करना है एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, सो we can do from one method. अगर हम ABC DP, ओके, इस ट्राइंगल को, सिंस ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP जब कॉन्ग्रुएंट है, और फर्स्ट पार्ट से ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के. तो जब फर्स्ट एंड सेकंड को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, मीन्स ट्राइंगल ABP में से ट्राइंगल ABD हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 subtracting 2 from 1 because 1 is larger, so 1 से 2 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ट्राइंगल DBP will be congruent to triangle DPC. जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाय CPCT वी कैन से एंगल BDP is same as angle CDP. This implies that AP bisect angle D also. Okay, third part is proved. Now see fourth part के लिए हमें given था कि angle APB is equals to angle APC. ये हमने देखा था by CPCT रूल सेकेंड पार्ट में, ठीक है.
तो सेकंड पार्ट का यूज़ करके हम करेंगे बाई सेकंड। और हमें पता है कि एक लाइन पे जितने भी एंगल बन रहे होंगे उनका सम क्या होगा 180। सो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए पी बी जब हम क्या रख सकते हैं, एंगल ए पी सी प्लस एंगल ए पी सी is equals to 180 degree. Twice of angle APC is equals to 180 degree. Therefore, value of APC is 90 degree, which is equal to angle APB. That means line AP is perpendicular on side BC. Or one more thing, AP, wait, one DPBC, AP 90 डिग्री एंगल बना रहा है BC के साथ, ओके। ऑल्सो वी हैड सीन BP इज इक्वल्स टू PC, देयरफॉर AP बाइसेक्ट कर रहा है BC को। सो इन दोनों को क्लब करके हम कह सकते हैं AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। Therefore, we had done with first question of exercise 7.3. Some more question we will deal in next video. Till then, goodbye. Thank you so much for watching my video.